Good morning, students. Last time, what we discussed about the thermodynamics laws, that was zeroth law, first law, and second law. And we also learned about specific heats, what is the specific heat, and related things. And when I ended my topic last time, I taught you about what is a heat engine. What was the heat engine? In heat engine, we have to give the energy input as heat, and we get output. Our desired vector is work. Okay. In engine, the input is in the form of heat, and output is in the form of work. So, in order to calculate its efficiency, we mentioned that the efficiency is our desired output, that is work, divided by our input, that is in the form of heat. So output by input gives the efficiency of that system. And we discussed it that theoretically by making a block diagram of an engine. I have told you that we have source on downwards. From source is at higher temperature. Afterwards, when our working fluid, maybe it is the gases of an steam engine or any what do I call that, internal combustion engine, whether it is IC engine or steam engines. So what we do in that, we make a source that provides heat, that gives heat to that working substance, whether it is steam or fuel air mixture. The gas expands, and in that expansion process, we derive our work. When the engine gets on the top dead center and highest position, the heat is rejected into the sink, so the engine returns back to its initial position. Okay, and we also calculated its efficiency. Now that is done, it is not our concern now. What is it? So from today, we are going to discuss our core subject, that is refrigeration and air conditioning. So starting with the refrigerator, I am going to discuss refrigerator today, and that comes the definition of our core, refrigeration and air conditioning. So why I was teaching you all thermodynamics, because that was a basic thing to understand these things. Okay. Now, what is a refrigerator? I have already given you an idea what a refrigerator is. A refrigerator is simply a device. It is the reverse of a heat engine. It is a heat engine in reverse fashion. Okay. A refrigerator is a device that consumes work continuously in order to extract heat from the working substance and reject it to the higher temperature. Naturally, it is not possible to bring a substance to a temperature lower than its surroundings. नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बॉडी को उसकी सराउंडिंग्स से कम टेम्परेचर पे ला सकें. It is not naturally possible to bring a body to a temperature that is lower than it is surroundings. अगर मेरे पास कोई सबस्टेंस है, मैं उसको उसकी माहौल से ज्यादा नेचुरली ठंडा नहीं कर सकता हूँ. ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है. जो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, जो सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट्स, केल्विन स्टेटमेंट और क्लैशियस स्टेटमेंट सेकंड लॉ के, कि हीट कभी भी लोअर बॉडी से हायर बॉडी तक हीट रिजेक्ट नहीं कर पाती है. सबस्टेंस कैन नेवर रिजेक्ट हीट टू अ हायर टेम्परेचर सोर्स. कि ठंडी बॉडी खुद से कभी और ठंडी नहीं हो सकती है, और वो हीट किसको दे? गर्म बॉडी. अगर मैं दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखूंगा, ये पॉसिबल नहीं है कि जो ठंडी बॉडी है वो और ठंडी हो जाए और गर्म बॉडी और गर्म बॉडी हो जाए, और जो ठंडी बॉडी है वो अपनी हीट भी इसको दे दे और ये ज्यादा गर्म हो जाए और ये कम और ठंडी से ठंडी हो जाए.
ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है. So in order to do that, we have to make a mechanism to make this thing possible, so that the body gets cooler than its surroundings. जो हम रेफ्रिजरेटर में यूजुअली करते हैं, बाहर 25 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग्स में होता है, हम आइस 0 डिग्री पे या -3 डिग्री 4 डिग्री पे ला सकते हैं, लेकिन नेचुरली नहीं. वी हैव टू गिव इनपुट एज वर्क. हमें यहाँ से एनर्जी का इनपुट देना है एज वर्क, तभी वो चीज पॉसिबल. मुफ्त में कोई चीज खुद से ठंडी नहीं हो जाएगी, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है. जब मैं हीट इंजन डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बोला कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है. बोला था कि नहीं बोला था? अभी मैंने बोला था कि 100% एफिशिएंट इंजन कोई नहीं हो सकता है. उसके बाद मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सैडी कैरनॉट. क्या नाम था? सैडी. उसने एक थ्योरेटिकल आइडियल इंजन डिजाइन किया था. क्या किया था? एक आइडियल मतलब एक इंजन ऐसा बना, बोला था कि एक इंजन का ऐसा आइडिया दिया था जो कि 100% एफिशिएंट है, मगर वो चीज थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकल थी. उसने एक आइडिया बोला, एक आइडिया दिया कि हम एक इंजन इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जो 100% एफिशिएंट होगा, जो कि 100% एफिशिएंट होगा. और वो क्या, वो इंजन, उसमें 4 प्रोसेस उस इंजन में होती है. उसमें एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो. 4 प्रोसेस उसमें होती हैं, जो हम एक साइंटिस्ट सैडी कैरनॉट, उसको आपने कभी कभार सुना होगा कि कैरनॉट साइकिल सुना होगा कभी नाम में. तो कैरनॉट साइकिल एक हीट इंजन साइकिल है, एक हीट इंजन साइकिल है. उसमें भी हम वर्क का इनपुट ही देते हैं और उस आउटपुट का नतीजा ये है कि जब हम उस इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, हमारी एफिशिएंसी 100% आ जाती है. लेकिन वैसा इंजन प्रैक्टिकली बनाना इम्पॉसिबल है. क्यों इम्पॉसिबल है? उसमें कैरनॉट ने बोला था कि उसमें पहली एक लिमिटेशन है कि हमें इनफाइनाइट थर्मल रिजर्वायर चाहिए, मतलब एक ऐसा हीट सोर्स चाहिए जो सन की तरह कंटिन्यूसली हीट दे और उसका खुद का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए. और हमारे पास ऐसी कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जो हीट दे और उसे खुद पे कोई फर्क ना पड़े. वैसा सो ये पहली लिमिटेशन है कैरनॉट साइकिल की, वो नहीं हो सकता है. और एक इनफाइनाइट थर्मल रिजर्वायर होना चाहिए जिसपे हम हीट रिजेक्ट करें, जिसमें हम हीट और उसका टेम्परेचर राइज ही ना हो, जिसमें हम अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं उस पे कोई फर्क ना पड़े, नहीं पड़े, वो भी पॉसिबल नहीं है. और उसने बोलना था कि फ्रिक्शनल लॉसेस भी नहीं होने चाहिए, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होने चाहिए. लेकिन फ्रिक्शन को नेगेट करना इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल. हम फ्रिक्शन को कभी 0 पे ला ही नहीं सकते हैं, है ना. सो ये भी एक लिमिटेशन थी किसकी? कैरनॉट साइकिल की. और उसमें वो रिवर्सिबल और उसने वो ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन, उसमें हमें कभी हमारा उसी सिस्टम में पहले उसको एडियाबैटिक बनाना पड़ता है. एडियाबैटिक मतलब हीट नहीं घुसती, या उसी को हमें डायाथर्मिक बनाना पड़ता है. सो उसमें भी हमारा वर्क तो एक्सपेंडिचर होगा ना. सो दैट वाज आल्सो इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच एन. अलबत्ता उस कैरनॉट इंजन, अब मैं आपको कैरनॉट, क्योंकि वो आपकी स्टडीज में आपको अच्छे से कैरनॉट साइकिल भी पढ़ा था, लेकिन वो आपके स्कोप से, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा आपके. लेकिन ये है कि वो वाला इंजन जो उसने डिस्कस किया था, उसमें उसने 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताई थी कैसे बनाना है. उसमें एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला था, एडियाबैटिक कंप्रेशन बोला था, आइसोथर्मल, फिर और एक प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एक था एडियाबैटिक. उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती थी और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती थी. क्या
दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस और दो एडियाबैटिक, दो कंप्रेशन में और दो एक्सपेंशन में। ऐसा एक साइकिल उसने डिस्कस किया था। उसकी हम जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, हम फिर आपका एक रिलेशन आ जाता है Q1/Q2 = T1/T2, फिर हम वो वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए। मतलब कितनी ये एक ना लॉ भी है, T1/T2 = Q1/Q2। ये मतलब ये इसका इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड एंड हीट एब्जॉर्ब। ये बराबर होता है, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। फिर यही वाली एक्सप्रेशन हम एफिशिएंसी में यूज करते हैं। वहां पे हमारा टी जो हमारा जो ये हीट रिजेक्शन टेम्परेचर वो एक मान के चलो हमें 0 केल्विन ये -273 डिग्री केल्विन आ जाना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं। इसीलिए जो कैरनॉट साइकिल है वो इम्पॉसिबल है। और एक चीज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, ये हमें फिर पढ़ने की, अगर ये इम्पॉसिबल है अगर ये, तो हम क्यों पढ़ते हैं? लेकिन इस चीज से हमें बहुत फायदा हुआ। क्या सीखने को मिला कि हम इंजन को एफिशिएंट, उसने बोला था कि अगर ऐसा आप बना लोगे इंजन, कभी कभार ऐसा पॉसिबल होगा, तो ऐसा वाला इंजन आपके लिए 100% एफिशिएंट रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही, अगर ऐसा नहीं बना पाए, अगर इसके करीब भी हम जा पाए, अगर हम इसके करीब भी, तो हमारा इंजन ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। जितना हमारा इंजन कैरनॉट साइकिल के करीब आएगा उतना वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि कैरनॉट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम है। कैरनॉट साइकिल वाला इंजन जो है उससे ज्यादा एफिशिएंट इंजन पॉसिबल नहीं है। ये भी एक सेकंड लॉ का ही तोड़ा मोड़ा मरोड़ा शेप ही है कि 100% हीट इंजन साइकिल पॉसिबल, ये भी सेकंड लॉ ही है, लेकिन दूसरे अल्फाज में। ठीक है। और सेकंड लॉ का ये भी मतलब है कि हम हीट नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हायर बॉडी, नहीं हो सकती है। ठंडी बॉडी अपनी हीट गर्म बॉडी को कभी नहीं दे सकती, गर्म बॉडी सर्द बॉडी को ठंडी बॉडी गर्म बॉडी को अपनी हीट नहीं दे सकती, वो खुद को और ही ठंडी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर पॉसिबल ऐसा करना है तो हमें एनर्जी का इनपुट उसमें देना है। ठीक है। अब मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। क्या, जैसे मैंने आप यहाँ के डिस्कस किया था हीट इंजन का, मैंने बोला था कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है इंजन के। इंजन में हमारा इनपुट होता है हीट और आउटपुट होता है वर्क। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इनपुट हमारा वर्क रहता है और आउटपुट हमारा उसका हीट एक्सट्रैक्शन है कि हमने कितनी है हीट फेंकी बाहर। वह यहाँ देखते हैं कि हमने कितनी हीट ली, यहाँ हम देखते हैं कि हमारी हीट कितनी रिजेक्ट हुई, वो हमारा यहाँ पे कंसर्न रहता है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, तो यहाँ हम रेफ्रिजरेटर्स की एफिशिएंसी नहीं बोलते, हम उसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा यहाँ पे डिजायर्ड चीज क्या है रेफ्रिजरेटर्स में कि हीट रिजेक्टेड कितनी हुई है ना, हीट रिजेक्टेड, और हमने वर्क कितना दिया, हमने दिया कितना, हमने खर्चा कितना, वर्क इनपुट। ये रेफ्रिजरेटर का COP बन जाता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रिजेस में, रेफ्रिजरेटर्स में एफिशिएंसी नहीं होती है। रेफ्रिजरेटर्स में COP की बात करते हैं, लेकिन इंजन्स में हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम, सर्विस से ये आपने लिखा, मैं फिर से लिखूंगा, आप अभी नोट डाउन मत करो।
अब आप समझोगे कि रेफ्रिजरेटर है क्यों अच्छी। देखो हमारे पास ऐसा ही जैसा हमने पिछली बार बनाया था ना सोर्स और सिंक, इसमें भी हम ऐसा ही बनाएंगे। चाहे मैं इन्वर्ट यहाँ से यहाँ पे चलो, यहाँ से यहाँ पे चलो, एक ही बात है। देखो इसमें भी हमारे पास दो टेम्परेचर के दो, एक हम सोर्स बोलते हैं सिंक, एक हायर टेम्परेचर की बॉडी होती है T1, मैं इसमें इंजन से उल्टा बनाऊंगा, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, दो टेम्परेचर है, T1 मान लो हायर टेम्परेचर है और T2 मान लो कम टेम्परेचर है। ठीक है, हमारा क्या मकसद है रेफ्रिजरेटर में, हमारा कोई बॉडी हमें गर्म बॉडी से हीट लेनी है, ये सॉरी सर्द बॉडी से हमें हीट लेनी है और रिजेक्ट कहाँ पे करनी है, हायर बॉडी पे करनी है। इसका मतलब है जो सब अगर T2 हमारा जैसा टेम्परेचर है T1, इसका मतलब यहीं से हीट निकलनी चाहिए और वो T1 में जानी चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा रेफ्रिजरेटर से। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा जो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड रहता है, जो अगर इंजन होता उसमें हमारा वर्किंग फ्लूइड हमारा फ्यूल एयर मिक्सचर रहता है पिस्टन में, लेकिन एक रेफ्रिजरेटर में हमारा वर्किंग फ्लूइड एक रेफ्रिजरेंट होता है। क्या होता है रेफ्रिजरेंट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में आप बोलते हो, मैकेनिकल लैंग्वेज में गैस बोलते हो, लेकिन उसको हम एक प्रॉपर इंजीनियरिंग टर्म है रेफ्रिजरेंट होता है। एक मतलब एक ऐसा केमिकल जो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉइल करे, बहुत कम टेम्परेचर पे, उसका ये काम होता है। सो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो एक रेफ्रिजरेटर होता है ये इंजन का रिवर्स होता है। देखो वहां पे आपने क्या किया, वहां पे जब हायर बॉडी से कोई ये होता था कि इंजन में क्या होता था, हायर बॉडी से टेम्परेचर लेता था, बॉडी एक्सपैंड कर जाती थी, है ना, एक्सपैंड कर, फिर जब इस टेम्परेचर वहां पे अपना हीट Q2 रिजेक्ट करती थी, है ना, ऐसे यहाँ से Q1 लेता था, यहाँ से वर्क देता था, है ना, एक इंजन में ऐसा ही होता था ना, यहाँ से T1 से Q1 लेता था और वर्क करता था और Q2 रिजेक्ट करता था और अपनी जगह वापस जाता था, ये इंजन का काम था। लेकिन फ्रिज में कंप्लीट उल्टा हो जाता है, वहां पे हर कोई जो एरो मैंने ऐसे बनाई, एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वर्क यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्क का आउटपुट था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क यहीं से इनपुट ले रहे हैं, हम इसको मतलब इस रेफ्रिजरेटर को खुद ही एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड और कंप्रेस खुद ही कर रहे हैं इसको रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। उस देखो क्या हो जाता है, जब हम रेफ्रिजरेंट को खुद ही कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन की वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और उसी वजह से इस बॉडी का टेम्परेचर, पहले आप मानो जब ये बॉडी यहाँ पे कम टेम्परेचर पर होता था, यहाँ पे थोड़ा सा हीट एक्सट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत, यहाँ जो हमारा जो यहाँ पे सिंक है कम टेम्परेचर वाली चीज, वहां से ये आप मान के चलो इस T2 पे इसका टेम्परेचर इससे भी कम हो जाता है, ये ना बहुत कम होता है, इससे भी कम नहीं, बहुत कम होता है। उससे क्या होगा, अगर सपोज आप मान लो इसका टेम्परेचर बहुत कम है ना, वेरी लेस टेम्परेचर, इसका जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है, तो इसमें इसी में इससे हीट निकल जाएगी, इसका मतलब कि ये यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेगी। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर हम इसको यहीं से मजबूर करेंगे कि हीट लेनी है किससे, इसको लोअर टेम्परेचर से, अगर इसको लोअर टेम्परेचर से, लेकिन अगर ये सपोज मैं बोलूंगा कि वर्क यहीं से आना चाहिए ना, मतलब इसी से वर्क निकलना चाहिए, लेकिन हम वर्क इसको यहीं से दे रहे हैं, इसका मतलब यहीं से लोअर टेम्परेचर से ही हीट ले रही है। आपको जब मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। वर्क इनपुट करने की से जो ये बॉडी है
ये कम टेम्परेचर से खुद ही हीट लेती है, ठीक है। उसको एक्सपेंशन के लिए जो पावर चाहिए होता है वो जो हम यहीं से देते हैं। सो ये उस वर्क की वजह से, इनपुट होने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज होके उसका टेम्परेचर इससे भी हाई हो जाता है, जहाँ पे हीट रिजेक्ट करती है उससे भी इसका टेम्परेचर, और अल्टीमेटली वो हायर टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। आप मान के चलो ये जो हीट इंजन है ये रिवर्स में काम करता है, ठीक है। वर्क का इनपुट यहीं से हो जाता है, इस बॉडी से रेफ्रिजरेंट खुद ही उसको हम मैकेनिकली मूव करते हैं हायर टेम्परेचर पे, उसको वर्क देके उसका टेम्परेचर राइज करके ये इसमें हम हीट को रिजेक्ट करवाते हैं। आप मान के चलो ये जैसा हमने इंजन बनाया था, अब एरोस को रिवर्स कर लो, यहाँ जहाँ पे वर्क आउटपुट था वहाँ यहाँ पे वर्क इनपुट आएगा, यहाँ पे हायर बॉडी टेम्परेचर दे रही है, अब हायर टेम्परेचर में हीट जा रही है ना, कंप्लीटली हीट इंजन का रिवर्स, ठीक है। चलो ये तो होगी ब्लॉक डायग्राम, ये तो हो गई ब्लॉक डायग्राम। क्या ये चीज कैसे, क्योंकि देखो आपको ये चीज इसलिए समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपको ये पता नहीं हुआ ये कैसे होता है। इसके लिए हमें 4 प्रोसेस, जो यहाँ से हीट कैसे आती है, इसलिए इस चीज को समझने की ये 4 प्रोसेसेस हैं, 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मैं आप इस ब्लॉक डायग्राम को दिमाग में रख के अब आप असली चीज सीखोगे कि असल में होता क्या है। रेफ्रिजरेशन कैसे होती है, अब मतलब अब फिजिकली इस चीज को हम प्रैक्टिकली कैसे बनाएं कि ताकि ठंडी चीज और भी ठंडी कैसे हो जाएगी, है ना मसला, ये कैसे होगा। उसके लिए हमें 4 प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। देखो क्या होता है, अब आपको समझ में आएगा कि मैं 1 महीने से आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं ये बात कर देता हूं, ठीक है। इसका पॉज।